Alright, so Katalap has moved to Delhi NCR, गुड़गांव स्पेसिफिकली। वो इसलिए क्योंकि आज हम हमारे कातलाप के एपिसोड में हम सिर्फ दोनों नहीं हैं जो यूजुअली कुछ भी बात करते रहते हैं। आज हमारे पास ढंग की बात करने वाले भी हैं यहाँ पर। मिस्टर CV Raman, who is working as the CTO for Maruti Suzuki India Limited, और आज हम इनके पास में कुछ चीज़ें समझने जो कि जनरली हम बात करते रहते हैं कि क्या फ्यूचर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, मोबिलिटी का, और दैट, एंड ही अग्रीड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे Thank you for having me. तो आपका इंट्रोडक्शन आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। सो आई थिंक हम तो सिर्फ वाह वाह कर सकते हैं सर। सबसे पहले तो नाम ही आता है। हाँ, exactly. हमें इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं भाई को कि CV रमन हो गया मतलब। नहीं, CV रमन वो जो थे वो अलग थे। He was a iconic and a world renowned figure. So anyway. So are you sir in नहीं the engineering? So it's just by chance, my name is same as his, but I have not even an iota there. So in any case, तो मेरा नाम CV रमन है। मैं I've been working in Maruti Suzuki for close to 4 decades. और मैं 4 decades. Yeah. So you've seen the entire company grow probably. Oh, kind of, yes. Yeah. So from उद्योग to Suzuki. From Udyog to Suzuki, yes, definitely. I've seen the transition. So I joined in 1984. So before that I was working in Escorts, Yamaha division. So वहाँ पे we were making, we were in the new projects department making RD350 Yamaha motorcycle. So actually supplier development and then also doing the working on the assembly line and putting together the bikes. So it was a very exciting time. And of course I'm working in Yamaha RX100, and before I shifted to Maruti Suzuki. But before that my background is I am a mechanical engineer from Delhi College of Engineering. Passed out in 1982. I have a question for mechanical engineering. Sure. And I studied in Delhi Public School, R.K. Puram. I was the first batch of R.K. Puram. So that's my background. I'm from Andhra. My full name is Challa Venkatraman. Challa is my surname, Venkat is my middle name, Raman is my name. Right. And so that's how it, just so happens to CV. coincide with the great man. So that's me. Yeah. And I very passionate about automobiles. So Do you still enjoy it? Oh yes. You do? There's always a learning. Every day is a Do learning. you have a RD with you? 350? No, I don't have. I would have loved to. At that point of time, actually, I couldn't afford one. Oh. But I have driven it a lot, and I know all the parts because Pretty I sure. put it together. So I know how it works. But it's great. I mean, we have met CV Raman at almost all the Maruti Suzuki launches, and Yeah. he's one guy who we directly go to talk about anything. If I'm confused about any technology, any changes happening, he is my go-to man. So so जो ये अपने आप को थोड़ा अंडर प्ले कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ that he knows his stuff really well, and that's the reason why हम जब पहली बार कातलाप हमने शुरू किया विद द गेस्ट्स, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही था। इनफैक्ट ये आइडिया हमने बहुत पहले सर के साथ में ही शेयर किया था। I remember there was some drive in उदयपुर या गोवा कहीं पे तो, और मुझे याद है मैंने तब बोला था मैं सर करते हैं, we will talk about mechanical things, we'll talk about engine, we'll talk about this and that. Yeah. फिर मैं खुद ही सोचता था कि लोगों को इंजन के बारे में सुनना है नहीं सुनना, क्योंकि मुझे Exactly. वो बहुत important अहम चीज़ है कि वो सुनना चाहते हैं कि नहीं. नहीं but we found out later कि हम जब भी वो बात करते हैं ना, slowly जनता बहुत ज़्यादा जानना चाहती है. They want to go deep in all those things कि कैसे बनाया, क्या हुआ, all those sort of things. Good. Awesome. So since transition की ही बात I think आपने थोड़ी बहुत छेड़ी थी, और since आपने RD350 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक की जर्नी आपने देखी है, और हम 4 स्ट्रोक से अब कुछ और ही जगह जा रहे हैं. No strokes. No strokes. नहीं, carburetor to MPF भी देखी है. Exactly. But now हम strokes की तरफ जा ही नहीं रहे, अभी हम motors की तरफ जा रहे हैं, हम batteries की तरफ जा रहे हैं. How do you see this transition? Do you I don't know if it's the right question to ask, बस
बट आपको हाउ डू यू सी दिस दिस होल ईवी? I'll add something to that. With that, do you think mechanical engineering will have less of the overall impact, and electrical engineering will take more of that? Engineers की job तो इधर उधर switch नहीं हो जाएगी. And also, how do you see the transition overall? Yeah. So I think it's a very big topic, but I'll try to make it very, very simple and short. So, क्या है कि over the last 4 decades, you have seen how mobility has changed, and mobility कैसे है कि पहले एक गाड़ी two-wheeler was the mainstay, then it became a four-wheeler entry-level vehicle. मारुति 800 से शुरू हुई जर्नी, और उस टाइम में 40,000 गाड़ी बनती थी फिएट और एम्बेसडर की, और जब मारुति ने बोला 1 लाख गाड़ी बनाएंगे, सब लोग बोलते थे कि कैसे बन सकती है 1 लाख गाड़ी। हमने बोला हम 50,000 रुपये में बनाएंगे, तो लोग बोलते थे अरे क्या बात कर रहे हो। तो बट एनीवे मारुति, एंड what we have seen is Maruti has put India on wheels today, and touched every household in the last 4 decades in some way or the other, and continues to do so. तो क्या है ट्रांजिशन, आप देखिए कि पहले गाड़ी नहीं होती थी, 2-व्हीलर से 4-व्हीलर में लोग बड़ी मुश्किल से ट्रांजिशन करते थे। उसके बाद में एक गाड़ी फैमिली में की बात होती थी 2000s में। अब आज की तारीख में एवरी फैमिली हैज़ गॉट 2 or 3 व्हीकल्स। सो ये ट्रांजिशन हो गया बिकॉज कस्टमर का चेंज हो गया, एंट्री लेवल से प्रीमियम गाड़ी बन गई है, और इतने सारे फीचर्स आ गए हैं, और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, और गाड़ी एक पर्सनालिटी, लोग अपने पर्सनालिटी को अपनी गाड़ी में देखते हैं। तो वो एक एक्सटेंशन हो गया, तो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया है। और आज की तारीख में मेरे को लगता है कि अगले 10 साल में और चेंज होगा, और मोबिलिटी लैंडस्केप बहुत बदलेगा। बट अगर हम देखें आज भी 2-व्हीलर और 3-व्हीलर की बात करते हैं, जो इंडिया की मूवमेंट है 15% ही है, 12% जो है 2-व्हीलर यूज़ करते हैं, और 3% ही मात्र ये 4-व्हीलर यूज़ करते हैं, और जो बाकी 85% है वो बाइसिकल पे चलते हैं, मेट्रो में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बस में जाते हैं। तो ये एक मोबिलिटी लैंडस्केप है, और पोटेंशियल जो है इंडिया का अभी अनलीश होगा, बिकॉज हम डेवलपिंग इकॉनमी है, हमारा इकॉनमी ग्रो कर रहा है। दिस इज़ द ओनली कंट्री वेयर द ग्रोथ इज़ हैपनिंग इन सच अ रैपिड पेस, एंड वी आर बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। और मोबिलिटी एक तरीके से उसको इकॉनमी को ग्रो करता है। तो एक तो है कि ये ट्रेडिशनल मोबिलिटी जो है, और ये जो ट्रांजिशन है, ये सब तो होगा, बट मेरे को ये भी लगता है कि मोबिलिटी भी इवॉल्व होगा बहुत तरीके से। जैसे हम शेयर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं आजकल, केस टेक्नोलॉजीज़ है, एसिस की बात करते हैं, ऑटोनोमस कनेक्टेड शेयर्ड इलेक्ट्रिक, ये जो है ये इसकी जो ट्रांजिशन है ये चेंज होगा, ये पोटेंशियल अनलॉक हो रहा है। इंडिया इज़ बिकमिंग डिजिटल, इंडिया इज़ सॉफ्टवेयर इज़ बिकमिंग मोर रेलेवेंट, और 5G कनेक्टिविटी आ गई है, गाड़ियाँ कनेक्ट हो रही हैं। तो गाड़ियाँ भी बचेंगी या गैजेट्स हो जाएंगे हम? अब ये हम जब ऑटोनोमस की तरफ जा रहे हैं, तो यही हो रहा है ना कि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, हर चीज़ को हम ऑटोनोमस कर रहे हैं। हमारा जो पर्सनल जो है, हमारा इंटरवेंशन गाड़ी की तरफ से भी हम कम करना चाहते हैं, और वो गाड़ी वी आर स्लोली डेलीगेटिंग द आवर फंक्शंस टू द कार। बट इज इट डिस्ट्रैक्शन? और अब ये बड़ा बहुत ही एक और बड़ा टॉपिक है कि ये आप जो भी करते हैं, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और इतने सारे टेल लगे हुए हैं। अब चलाते वक्त आप यू ट्राई टू टच इट, एक्चुअली इट्स डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो इन अ वे, एंड इट इज़ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। तो हम लोग को क्या हो गया कि एक इम्पेशंस आ गया है, कि पहले मोबाइल नहीं होता था, तो अब मोबाइल नहीं है तो भी इम्पेशेंट हैं। तो मतलब चेंज देखिए आप, तो आप उस इंस्टेंस में भी हम मोबाइल की तरफ, हम किसी ना किसी तरह के लोग, यू कैन सी पीपल आर एक्चुअली टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग। सो आई थिंक दे आर ऑल डेंजरस ट्रेंड, बट हैविंग सेड दैट, दैट्स हाउ कस्टमर्स आर यूजिंग, एंड दैट्स हाउ दे फील कि वो फोमो होता है ना, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट एवरी इंस्टेंस। तो ये करना है, तो ये एक चेंज हो रहा है मोबिलिटी का। तो कमिंग बैक टू द थिंग कि क्या ट्रांजिशन होने वाला, सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, और वो अब जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, अब कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। अब पॉइंट ये है कि वो कार्बन फुटप्रिंट को हम लिमिट कर सकते हैं, और उसके बाद कम कर सकते हैं कि नहीं।
तो ये एक बड़ा Challenge. it's a challenge for all Everybody, the all the industry, all industries and all governments. तो इंडिया ने डिसाइड कर रहे हैं 2070 में हम वी विल बिकम नेट ज़ीरो, बिकॉज वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी नेट ज़ीरो इन 2050, बट हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारी जो इम्पेरेटिव है डेवलपिंग इकोनॉमी की अलग है. तो हमने हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं. जब दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब हम कैचअप कर रहे हैं. तो हमको तो विल नीड दैट स्पेस, वी नीड दैट टाइम. तो एक ये बड़ा अहम चीज़ है विच पीपल नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई हमको ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, इकॉनमी भी बढ़ानी है, लोगों को मोबिलिटी भी देनी है और इकॉनमी को ग्रो करना है. पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तभी तो मतलब विल बिकम अ डेवलप्ड इकॉनमी. करेक्ट. एंड आपने जो ईयर कोट किया, मुझे उससे याद आता कि ये ईयर्स आगे पीछे होते रहते हैं. लाइक द गोल है हमारा 2070 या 2035 इलेक्ट्रिक कार्स के लिए फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. हमने डेवलप नेशन को भी देख लिया, इंडिया डेवलपिंग स्टेट में हमने उसमें भी देख लिया. इज़ इट बिकॉज ऑफ कि कस्टमर्स जो है वो ट्रांजिशन चाहते नहीं है? इज़ इट बिकॉज इनफ रिसोर्सेज नहीं है? इज़ इट बिकॉज ब्रांड्स रेडी नहीं है? जो एग्जिस्टिंग आइस मैन्युफैक्चरर्स है ट्रेडिशनली वो रेडी नहीं है, या जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये सब चीज़ें आगे पीछे होती ये रहती सब ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ इट. क्यों? आप कस्टमर हो, मैं कस्टमर हूँ, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक आई नीड अ मोबिलिटी सोल्यूशन, आई नीड विच इज़ कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, it it has to have a aspirational design, it should be performance oriented, it should give me a good running cost, and it should be making me economical, and I should have the infrastructure to run it, and if I am going from one place to the other, I should not have any inconvenience. करेक्ट. अब ये आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और ये आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेकर्स और सब लोगों को, एनर्जी कंपनीज को, सबको मिलके ये इसको क्रिएट करना है. हमने इतने सालों में पिछले 100 साल में हमने आइस इंजन का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया. करेक्ट. गाड़ी बनाने से लेके और फ्यूल का और सब कुछ हमने बना दिया, और उसको हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं. उसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं. अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, इसको ना अब हम इसको चेंज कर देते हैं. अब चेंज इज़ द ट्रांजिशन. अब वो ये सब टेक्नोलॉजी तो चेंज होता रहेगा, बिकॉज जैसे हमने 2000 में मतलब वी the computers which are there and what we have, laptops which we have today, it is the desktops have become laptops and everybody has a laptop, and whatever you can do on the laptop today, one can do on a mobile phone. करेक्ट. तो ये जो है, ये this is the transition of the technology, power of the technology. अब वो टेक्नोलॉजी अगर आप बोलो कि अच्छा मैं गाड़ी में भी देखना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आज की तारीख में, इट इज़ अवेलेबल. अब यही ट्रांजिशन ऑफ technology you can see in a Tesla. Tesla is like a computer on wheels, it's everything. So it gives you all the functionalities like any other. So एक वो टारगेट है. बट हम क्या है, हम इंडिया में एक पर कैपिटा इनकम जब हमारा एक लेवल का है, 1/8 ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, हमारा जो मोबिलिटी है या कार का जो पेनिट्रेशन है 30-35 है. प्रिडोमिनेंटली 2-wheeler स्पेस है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है. तो हमारी सब कुछ जो मोबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है दुनिया से, और हम उसको अफोर्डेबल बनाना बहुत ज़रूरी है. कोई भी हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उसको हम अफोर्डेबल करेंगे. वो मैं 4-wheeler की टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल करूँगा तो 2-wheeler वाला ट्रांजिशन करेगा. और अगर वो 2-wheeler का वो अगर इकोनॉमिकल होगा तो बाइक जो चलाता है, बाइसिकल चलाता है, वो 2-wheeler ले सकता है. करेक्ट. तो और मैं उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दूँ, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो और बस और ये सब कनेक्टिविटी दूँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दूँ, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंट, सेफ, एट अ इकोनॉमिकल रेट में वो पहुँच जाए. ये एक टारगेट है मोबिलिटी का, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. मेरे को गाड़ी तो नहीं चलानी ना मेरे को. अगर मेरे को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है, अगर इकोनॉमिकल वे में मैं घर से वहाँ टाइम पे पहुँच सकता हूँ, एंड कन्वीनियंट है, और कंफर्टेबल है, तो मैं वही लूँगा ना. तो आज की तारीख में 2-wheeler और द 4-wheeler इज़ व्हाट इज़ प्रोवाइडिंग दैट. अब वो चेंज हो जाएगा और कुछ और आ जाएगा, तो वो दैट इज़ व्हाट आई से मल्टी मोबिलिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. ये एक
स्पेस है ये डेवलप होगा मेरे हिसाब से, और ये ग्रो होगा, बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप, नहीं तो कितनी गाड़ियाँ आप बनाएंगे, कितने लोगों को आप मूव कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये एक अहम पे और बहुत ही बड़ा डायमेंशन का चैलेंज है जो कि हम सब लोगों को सॉल्व करना है। तो इंडिया का जो चैलेंज होगा और जो सोल्यूशन जो होगा मेरे ख्याल से बहुत यूनिक होगा, और हमको ये ढूंढना है। And so it is not about car making or two-wheeler making or in this thing. It is about creating this The whole ecosystem, this the whole trans- ecosystem Yeah. of change. और उसके बीच में ये सब जो ट्रांजिशंस है ना कि हम चेंज कर रहे हैं, हमने अच्छा आइस से हमने हाइब्रिड करना है या सीएनजी करना है या हम इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं? हम CO2 रिडक्शन करना चाहते हैं, तो हमने सीएनजी से 25% कम कर दिया, हाइब्रिड से 35% कम कर दिया। तो ये हमारी एक तरीका है, डायरेक्शन है कि कैफ़े को मीट करने के लिए। कैफ़े तो टाइटन होता रहेगा बिकॉज हमको नेट ज़ीरो पे जाने की तरफ वो एक एवरी 5 years वो चेंज होता रहेगा, वो टारगेट चेंज होता रहेगा। यूरोप में भी चेंज हुआ है, इंडिया में भी होगा। For those who don't know, CAFE is corporate average fuel efficiency. फ्यूल एफिशिएंसी बेसिकली एक कंपनी कितना ओवरऑल इमिशंस करती है उनके ओवरऑल साइज के हिसाब से, दैट इज द हाँ, जो कितने प्रोडक्ट हैं और पावर ट्रेन के हिसाब से उसके वेट और CO2 के बेसिस पे और सेल के बेसिस पे हर एक कंपनी का एक कॉर्पोरेट एवरेज निकलता है। तो इट इज़ ओनली टुडे ओनली फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, for passenger बट energy एनर्जी कंपनी जैसे आप वो देखते हैं एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनमें भी एक स्टार रेटिंग आता है कि आपको एनर्जी एफिशिएंसी है। We'll talk about star ratings as well. Some other star ratings. समझ स्टार्ट। तो ये एक तरीका है और वो ये एक टेक्नोलॉजी है। इज अ टेक्नोलॉजी टू अ मीन्स टू अ एंड। तो आपको CO2 कम करना है, इसलिए आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप करेंगे उसको। मतलब आपको ये सब टेक्नोलॉजीज लेके आनी है। अब इसका चैलेंज क्या है? कॉस्ट का चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, हर एक चीज़ में। CNG जब इंफ्रास्ट्रक्चर कम था तो CNG पेनिट्रेशन कम था। आज तारीख आप देखें हमारे पास, हमने एज मारुति सुजुकी वी हैव अबाउट 14 ब्रांड्स व्हिच हैव गॉट CNG। 2.5 लाख से ऊपर गाड़ी हमने बेची लास्ट ईयर। तो हम चाहते हैं कि और बेचेंगे, बिकॉज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वो CNG पेनिट्रेशन बढ़ेगा। पहले नहीं था तो बढ़ा नहीं। उसी तरीके से अगर आप एथेनॉल देखें या फ्लेक्स फ्यूल देखें, फ्लेक्स फ्यूल आज नहीं है बट कल को अगर आ गया तो हमको वी हैव टू बी रेडी। और वो अब डिस्पेंसिंग स्टेशन ऑल इंडिया अगर आ जाते हैं तो वो ग्रो करेगा। उसका क्या है मेरिट? बहुत ही क्लियर मेरिट है कि आप उसको जो ग्रेन से आप फ्यूल बना रहे हो, तो 85% आप एथेनॉल अगर डाल देते हो तो बेसिकली आपका एनर्जी सिक्योरिटी जो है कम इंडिया की वो बेटर हो जाती है, बिकॉज यू कैन reduce the imports. Crude is a big component of our import. तो उसको हम कम कर सकते हैं, और उससे हमको जो बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बायोजेनिक फैक्टर, बिकॉज आप मीथेन जो है आप जो एटमॉस्फेयर में उसी को यूज़ करते हैं, और प्लांट बेस्ड जो है आपका फॉसिल जो मतलब ये जो प्लांट्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं CO2, उसका जो साइकिल बनता है उसका जो बायोजेनिक फैक्टर है उसका मेरिट मिल सकता है आपको कैफ़े में भी। और जैसे वेस्ट है, वेस्ट टू एनर्जी, बायो CNG की हम बात करें, एक कार्बन नेगेटिव फ्यूल है। वेस्ट है, अगर वो एसिड छोड़ा तो वो मीथेन छोड़ेगा। अगर वो आपने उसको कैप्चर करके उसको यूज़ करा तो आप CO2 रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये एक साइकिल बनाना है, सस्टेनेबल साइकिल बनानी है। तो ये लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं जो कि हमको परस्यू करनी चाहिए। और उसके अलावा और थोड़ा और अगर आप जाएंगे तो हाइब्रिड है, जिसके अंदर में सेल्फ चार्जिंग है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, 35% रिडक्शन होगा CO2 का, और बट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है आइस इंजन से, बट बेनिफिट है। और सेल्फ सस्टेनिंग चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड ऑफ कोर्स EV है, EV का बेनिफिट तो पता ही है कि टेल पाइप एमिशन 0 है, बट ओवरऑल अगर आप वेल टू व्हील देखें तो आज की तारीख में रिन्यूएबल कंपोनेंट अगर जब तक हमारा बढ़ेगा नहीं करेक्ट तो तब तक वो सेंस नहीं होता है। तो 2030 में जब हमारा 500 गीगावाट आ जाएगा रिन्यूएबल, तब इट विल स्टार्ट मैचिंग द हाइब्रिड इन टर्म्स ऑफ वेल टू व्हील। तो ये कैलकुलेशन है, बट एनीवे तो ये डायरेक्शन है कि हमको सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ ले जाने के लिए। मारुति सुजुकी मतलब वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी गुड, बट मैं ब्रांड का पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि मारुति सुजुकी को क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ
what we can do in India. सी जैसे आपने बताया कि ग्लोबल फिनोमिनन से इंडिया का सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होगा, ये हमने टू व्हीलर्स में भी देखा है. हमारे साथ टू व्हीलर्स में भी आप जो इंडिया में देखते हो हार्डली कुछ एक कंट्रीज़ में रिप्लिकेट हो पाता है, बाकी सब कंट्रीज़ का अलग ही चलता है. मारुति सुजुकी को क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में इन 5-10 सालों के लिए हमें ये चीज़ बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए, इज़ इट द हाइब्रिड, इज़ इट दी कंप्लीट ईवी, इज़ इट दी CNG, और इज जस्ट सब मिक्स करके अभी चलते रहो, वी विल सी डेफिनेट पॉइंट और उसके बाद वी विल डिसाइड. देखिए एज मारुति सुजुकी वी आर फुल सर्विस प्रोवाइडर. एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम गाड़ी हम सब बनाते हैं आज की तारीख में. तो हमारे जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है और उनकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, और बट सबकी अफोर्डेबिलिटी और हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक सेगमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है कि वो टेक्नोलॉजी कितना आप एब्जॉर्ब कर सकती है. वो वाला सेगमेंट एंट्री लेवल में आज की तारीख में अगर आप उसको अगर आप बैटरी इलेक्ट्रिक बना देते हैं तो द कॉस्ट विल बी वेरी वेरी हाई, सो अफोर्डेबल नहीं रहेगा वो तो इट विल नो लॉन्गर बी एंट्री लेवल. सो बट उसके लिए भी हमको कार्बन रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ करना है. तो क्या कर सकते हैं, तो CNG करते हैं तो ऑटोमेटिकली 25% रिडक्शन हो जाता है. या फ्लेक्स फ्यूल करेंगे तो जैसे वैगनआर हमने फ्लेक्स फ्यूल दिखाई थी तो वो उससे भी बेनिफिट हो सकता है. तो वो हमारा एक डायरेक्शन है कि हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, बिकॉज हमारी जो रेंज है वो ज़्यादा है और हमारी जो आवर वॉल्यूम इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो हमारे को वी हैव नो ऑप्शन बट टू डू बट ऑल द टेक्नोलॉजीज. बट ये चैलेंजिंग भी तो है, मतलब वर्किंग ऑन वन टेक्नोलॉजी, आई एम प्रीटी श्योर. बहुत चैलेंजिंग है, इवन इन द फैक्ट दैट कि हमको मल्टीपल, हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है उसको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे पैरेलली सब पे काम करना है. आपको इलेक्ट्रिक पे भी काम करना है, हाइब्रिड पे भी काम करना है, CNG पे भी है और CBG पे भी और ICE इंजन पे भी काम करना है. तो हम लोग जैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल विल कम नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर, आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक विल कम. हाइब्रिड 2 मॉडल्स वी ऑलरेडी हैव गॉट. फ्लेक्स फ्यूल विल कम इन 2025. CNG हमारे ऑलरेडी है और CBG की तरफ हम वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स. बट इज इट मोर कन्फ्यूजन, बिकॉज इट लुक्स कन्फ्यूजिंग टू मी, बिकॉज यूजली जहाँ पर भी हम ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं वहाँ पर एक क्लियर कट पॉलिसी है कि अभी हम आइस हैं. देर आर सम यूरोपियन नेशंस और अमेरिका, दे क्लियरली से कि हम लोग आइस से EV सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. दैट्स द ओनली सोल्यूशन, वी डोंट हैव एनी अदर सोल्यूशन. लाइक इथेनॉल is very limited in Europe. In Europe. I think Latin America probably they have. Brazil is an example and France is an example. France में ethanol is growing. Flex fuel they are talking about. Because क्या है कि एक political direction होता है और एक country का direction होता है और एक customer है. आपको बैलेंस करना है और आपको सब चीज़ों को मीट करना है. एनर्जी सिक्योरिटी भी मीट करनी है, कार्बन फुटप्रिंट को रिडक्शन भी करना है और इट शुड बिकम अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन. फाइनली अगर कस्टमर को अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं मिला ना तो आप कितना भी कर लो टेक्नोलॉजी, वो फ़ायदा नहीं है उसका. व्हाट इज एमिशन, मतलब मैं वापस जस्ट शॉर्ट में जाना चाहता हूँ कि एमिशन कैसे कैसे रिड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल हम डीजल पेट्रोल पे जहाँ पे अभी है सबसे मतलब CNG आई थिंक इज दैट कि CNG पे कम होता है. आप उसको माइल्ड हाइब्रिड लगाया या स्टार्ट स्टॉप लगाया तो 3% का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. अच्छा. और आप माइल्ड हाइब्रिड जो हमारे स्मार्ट हाइब्रिड अगर हम करते हैं तो 7%, 6 to 7% आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. आप CNG पे जाएंगे तो 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा. आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाएंगे तो 35% हो जाएगा. तो ये हर एक फ्लेक्स फ्यूल का तो फ्लेक्स फ्यूल एज सच कार्बन CO2 नहीं कम करता है, बट उसके अंदर क्या करते हैं कि आपको यू गेट मेरिट इन द बायोजेनिक फैक्टर. ओके. ऑल्सो फ्यूल पर डिपेंडेबिलिटी थोड़ा. हाँ, तो उसका बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी. Okay. It is another dimension of India's issues. और इंडिया के issues जो हैं, आप मेरे हिसाब से आप एक सोल्यूशन निकाल के आप एक सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं. इंडिया में आज भी आप गांव में जाएंगे तो आपने देखा होगा अपार्ट फ्रॉम द 2-wheeler एंड 4-wheeler जो चलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द बसेस, एक अलग तरीके की गाड़ियाँ चलती हैं तो जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं. वो अलग ही है. उसका कोई वो रैशनल नहीं है. और वो आप आज की तारीख में ट्रैक्टर पे एक टेम्पो ट्रॉली, एक ट्रॉली लगा के वो आदमी
are transported. हमने टू व्हीलर पे भी देखा है ना वो हमने टू सिलेंडर व्हीलर पे देखा है लोग एलपीजी का छोटा सा किट टू व्हीलर पे हाँ, लगा के चला करेंगे। वी आर वेरी सरप्राइज टू सी दैट करेंगे क्योंकि वो एक सोल्यूशन है, उसको लगता है कि ये एक मेरे को एक इट मेक्स it affordable for me. Slightly economical and he'll try. But everything, but that is India ना. Yeah. That is uniqueness of India. Correct. तो वो uniqueness of India को आप निकाल नहीं सकते इंडिया से, तो वो तो सोल्यूशन ढूंढेंगे लोग, और लोग एंटरप्राइजिंग हैं और लोग का दिमाग भी बहुत चलता है, और everybody is out to reduce the cost of what is pinching him and his outflow from his purse towards एनर्जी. तो पेट्रोल अगर मैं डालता हूँ एक गाड़ी के अंदर में, तो मेरे को आज के में 1 किलोमीटर 5 रुपीज़ आई हैव टू. तो वो सोचता है कि अच्छा 5 रुपये, CNG डालता है तो 2.5 रुपये, तो इमीडिएटली आज की तारीख में CNG की तरफ जा रहे हैं. तो अब वो इलेक्ट्रिक भी जा रहे हैं, जिसको अफोर्ड कर सकता है वो इलेक्ट्रिक भी खरीद रहा है. क्यों? आज की तारीख में उसके घर में स्पेस है, वो चार्ज कर सकता है, तो उसका जो कम्यूट है 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर एवरी डे है, उसको TCO उसका रनिंग कॉस्ट जो है 1 रुपया है पर किलोमीटर. तो वो EV भी चलाता है. आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर ड्राइविंग EV, दे कम्यूटिंग फ्रॉम गुड़गांव टू गाजियाबाद ऑन अ डेली बेसिस. उसके घर में पार्किंग है, ही कैन अफोर्ड इट, वो यूज कर रहे हैं. तो फॉर हिम इट मेक्स सेंस कि भाई मैं 5 रुपए की जगह में 1 रुपए दे रहा हूँ. सब चीज़ें कॉस्ट पे आ जाती है. तो वो फाइनली इट कम्स डाउन टू कॉस्ट. कस्टमर ना इज वेरी वेरी स्मार्ट. आप you cannot change, and he is becoming smarter because now today उसको पता है कि दुनिया में क्या अवेलेबल है. इंटरनेट एज है आज की तारीख में. जो यूरोप में बन रही है, जो US में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो चाइना में हो रहा है, उसको सब पता है. कस्टमर आज की तारीख में पूरी रिसर्च करके शोरूम में घुसता है कि उसको क्या खरीदना है, बिकॉज उसको पता है. आज की तारीख में तो जो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो वो अपना वो पूरा नहीं, वो आजकल लगाने भी लगे हैं कि अगर आपने गूगल का ज्ञान ले रखा हो तो मुझे मत देना. तो दैट इज हाउ इट इज. सो एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट कि वो ये हो गया बिकॉज दैट ज्ञान इज अवेलेबल टुडे, एंड सो दैट ज्ञान विल बी यूज्ड, एंड ज्ञान विल बी ज्ञान देने में तो फ्री में दे सकते हैं ना, तो वो अवेलेबल है. तो वो एक चैलेंज है. बट हैविंग सेड दैट, वो एक इट हैज़ टू बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड इट हैज़ टू मेक सेंस फॉर द कस्टमर. कुछ भी हम करें ना, अगर कस्टमर को अगर पसंद नहीं आएगा ना, वो नहीं लेगा. आप कुछ भी कर लीजिए, आप जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जितना भी अच्छा हो, वो नहीं लेगा. तो आज की तारीख में अगर आप देख लो कि इंडिया इज़ what kind of mobile phone country. It is not an iPhone country. iPhone is only 15-20%. iPhone is cutting edge technology. 80% is Android. Still, and the Android phones are more have all the features. They have all the compatibility in terms of 5G and everything. And they give you all. And they are in their price range. Correct. And they are available at 15,000 rupees, 20,000 rupees, 40,000 rupees, and everything. And they are upgrading as fast as any other product. What do you use, iPhone or Android? I use both. I have an Android and I have That's one. a nice answer. So I like to use both technologies. Okay, so since we're talking about the transition a little bit, हम बात करें पैरेलल टेक्नोलॉजीज की बात करने, क्योंकि जैसे कि आई ऑल्सो अग्री कि इंडिया में एक सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा. दे शुड बी मल्टीपल सोल्यूशंस. सो आइस की जब हम बात करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, हम सीधे बात करें आइस हट जाएगा तो EV आ जाएगा. देयर आर टेक्नोलॉजी, से टोयोटा इज वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी वेयर इन they want to revive ice with hydrogen fuel they're using, and they've showcased it. It sounds also nice, which we love. How do you see that hydrogen coming into the loop? And we are also experimenting with different fuels. So how do you see that? I mean, is that the direction that probably we should go as well? ये भी एक एनर्जी सोर्स है. और आज की तारीख में भी हाइड्रोजन इज इन द रिफाइनरी कम्स आउट. द चैलेंज इज हाउ डू यू गेट द हाइड्रोजन एट द इकोनॉमिकल कॉस्ट. दैट इज चैलेंज. Correct. And how do you dispense it, and how do you
transport it safely. safely. Yeah. And so, and then how do you use it? So usage is कि ICE engine में डाल सकते हो आप या fuel cell में डाल सकते हो. Fuel cell it's still a long way off. You know, there are only 3 vehicles in the world today running on which are fuel cell vehicles. तो उसका उसका जो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डिस्पेंसिंग के लिए. इट्स हाई pressure, systems. Correct. And so safety and all of that is important. But key point is again availability and availability across India. And so today work is happening, but I believe one of the things which is likely to happen is that in the truck industry, because heavy commercial vehicles, वहाँ पे battery you are carrying and you are carrying goods, it doesn't make sense, in a way. So वहाँ पे अगर आप, and research is happening and people are showcased also, you should have seen in the last auto expo. Yeah, I've seen it. The hydrogen based engines are being run and they are being tested, and there is a possibility going forward. But having said that, if hydrogen does happen and it becomes affordable, the direction will be it will be towards that direction, where fuel cell and it is replacing the motor with the fuel cell, and moving in that direction. But that's still some way off. But many countries are betting on it. Japan and China are betting on that in a big way. Right. Since we touched upon the commercial vehicle segment as well, तो हम उस बारे में बात करते हैं कि अभी तो हम बोलते थे कि पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं उनको तो चलो ठीक है, आप आइस की तरफ जा सकते हो, CNG जा सकते हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस. बट ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या हैवी व्हीकल्स हैं, इनका क्या मतलब नॉट इन द डिस्टेंट फ्यूचर बट लाइक द नियर फ्यूचर, हाउ डू यू सी दैट दीज कंपनीज वर्किंग ऑन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे कि उनके CO2 emissions वगैरह कम हो रहे हो, और क्या feasible solution है इन लोगों के लिए नियर फ्यूचर में? They are also working on fuel efficiency solutions. उनका भी एक there is a metric for them also, and that is likely to come very shortly, Right. for the heavy commercial vehicles also. But that they tested at the engine level. They don't test it at the chassis and that level. They will be testing at the engine level. So that's one direction which is likely to happen. But they also need to improve their the CO2 and all of that. That definitely is a direction which they will have to do. And you can see today buses are becoming electric, and somewhere buses becoming electric has a big potential. And India today is not harnessing the bus potential. We can actually increase, and we need more buses in cities and metros, intercity as well as intracity, in order to make mobility again affordable. And EV is one big, electric buses have a good, very good potential. And today there are manufacturers who are, doing a lot of good work, and they don't really require subsidies today. And so it is, in a way, the BOT model which they have made, build, operate and transfer model which they have got, is working very well. And and that is definitely going to grow. They have been growing there, and I have recently visited one of them, and they're doing a very good job. And so I think the potential there is huge. But as far as the trucks are concerned, definitely there is a need for finding other alternate solutions. And the diesel, of course, is going to be continuing in that for some more time. Okay. And the ICE, I think, and I would like to make this statement here also, that ICE also is going to continue for some time. It's not that the ICE is going to go, that कि वे ICE बंद हो गया. India is going to be one of the last man standing as far as ICE vehicle is concerned, both on the passenger vehicle and on the truck side and heavy commercial vehicle side. Completely different question now. चूँकि comments में हमें आता है, ये टोयोटा और मारुति सुजुकी कर क्या रहे एक साथ में? क्या कर रहे हैं साथ में? आपकी बॉन्डिंग अच्छी है. क्या चल रहा है? क्या कभी हमें टोयोटा के डीलरशिप पे मारुति के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कभी टोयोटा मारुति को कुछ सप्लाई कर रहा है, क्या व्हाट इज गोइंग ऑन? It's a global alliance between Suzuki and Toyota, and it is sharing of products and sharing of technology.
So Toyota has shared their hybrid technology with Maruti Suzuki and Suzuki. सुजुकी में जो आप ग्रैंड विटारा सुजुकी ने डेवलप करा ग्रैंड विटारा, उसमें हमारा पावर ट्रेन K15 था ही, उसमें जो 680 था वो हमारा था, और उसके अंदर जो ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी थी वो भी सुजुकी की थी, बट जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो टोयोटा से ली है। और हम टोयोटा की जो फैसिलिटी है वहाँ पे हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो वहाँ पे टोयोटा ब्रांड भी बनाते हैं और सुजुकी ब्रांड भी बनाते हैं। तो हम लोग सुजुकी ब्रांड भेजते हैं, वो लोग टोयोटा ब्रांड भेजते हैं। सो इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज। सिमिलरली जो हम गाड़ी बना रहे हैं तो हम उसको रीबैच करके हम वी आर सेलिंग दैट टू टोयोटा इन सेगमेंट्स वेयर दे आर नॉट हैविंग products like the Glanza or the Ruminion or so on. So that's it's तो I मुझे think it's ग्लांजा working लेनी चाहिए, well. बलेनो लेनी चाहिए? Well, आप मारुति में बैठे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आपको बलिनो लेनी चाहिए। आप वो देखते हो रील्स वगैरह देखते हो कभी, फ्री टाइम रील्स और यूट्यूब वीडियोस, देयर आर मीम्स गोइंग ऑन जिसमें लोग बोलते हैं कि अब थोड़े दिन रुक जाओ, देयर विल बी अ सुजुकी फॉर्च्यूनर VXI कमिंग। I know. I've seen that on Facebook and on Reels, and they have made some good designs also. Yeah, I've seen exactly. that. So it's okay. I mean, that's how people are speculating कि अच्छा अब मारुति ने ये गाड़ी निकाली तो टोयोटा क्या निकालेगा, और टोयोटा ने निकाली तो मारुति क्या करेगा. So but it is I think it is a global practice of sharing technology, sharing platforms, sharing Yeah, in resources. fact, that Ertiga we've seen in South Africa, Rumion। Rumion, with Ertiga isn't there at all. I yeah. mean, it's तो ये this is you have to share today. आज की तारीख में क्या है, technology by itself is not residing only at the OEM. It is residing with suppliers, and in future, I mean, now we are working with startup companies and with other players in the ecosystem to be able to co-create solutions. अब ये आगे जाके यही एक डायरेक्शन है, to co-create, and you will because the resources have to be pooled in order to do this, and so pulling across OEMs and pulling with suppliers and pulling across the other ecosystem, like working with startups also is going to happen in a big way to develop technology. Yeah. Now I'll talk about stars. तो पहले टॉपिक हमारा चल रहा था, the different kind of stars. It's about the safety thing. I know there's a lot of debate that's going on, and we since we keep interacting with both the sides, मतलब customers के साथ में भी और manufacturer के साथ में भी, we know pretty much कि कहाँ क्या चल रहा है, किसको क्या challenges आ रहे हैं. But right now customers की demand है धीरे धीरे कि they want safer cars, and there are organizations, multiple in fact India में तो अब BNCAP आ गया है as we are talking. How do you see all these organizations? Do they help in overall awareness of safety? How do you see safety itself? Because अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि there are people जो two wheelers वाले उनको four wheelers से switch करना है. That itself adds a lot of safety. तो वही अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है पहले तो, कि कैसे अफोर्डेबल बनाओ कि टू व्हीलर्स वाला ही स्विच करके पहले सेफ जगह एनवायरनमेंट में पहुंच जाए. तो हाउ डिफिकल्ट इज टू इंजीनियर ए प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल भी है, सेफ भी है, एंड व्हाट डू यू थिंक इज सेफ्टी? देखिए, दो पहलू हैं इसके. एक पहलू तो मैं बोलना चाहूँगा कि BNCAP के लिए हम बहुत सालों से हम काम कर रहे थे विद द गवर्नमेंट एंड विद दिस एजेंसीज. तो फाइनली अभी ये प्रोटोकॉल अभी रिलीज़ हो गया है, एंड वी वेलकम दैट protocol, and we believe also that जो टेस्ट मेथडोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे एक रेटिंग होता है, दिस इज़ अ मेथड टू एडुकेट द कस्टमर कि हाउ कार्स आर सेफर, बट एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि एक रेगुलेशन होता है. रेगुलेशन हर एक मेकर को वो रेगुलेशन तो मीट करना ही है. उसके अंदर एमिशन भी होता है, उसके अंदर सेफ्टी भी होता है. अच्छा. तो एमिशन भी मीट करना है, उसको CO2 भी मीट करना है, उसको टेल पाइप एमिशन भी मीट करना है, उसको सेफ्टी भी मीट करना है. सेफ्टी में क्या मीट करना है, उसको ऑफसेट साइड इम्पैक्ट और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन तीनों मीट करना है. उसको सीट बेल्ट और उसके जो रिटेंशन है वो सब कुछ मीट करना है. कौन सेट करता है ये सब दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड. ये MORTH के तहत और टेस्ट एजेंसी के साथ में दिस इज ऑल इंडिया स्टैंडर्ड और BIS स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल.
वेयर दिस इज अ रेगुलेशन एंड उसके बेसिस पे ही आपको होमोलोगेशन सर्टिफिकेट मिलता है। राइट, अच्छा, अगर That's आप the bare minimum. दैट इज द बेयर मिनिमम। अगर आपको टेस्ट पास नहीं करा तो आप होमोलोगेशन नहीं मिलेगा और आप गाड़ी नहीं बेच सकते हो। अच्छा, तो ये बेसिक है, सब लोगों को मीट करना है। तो ये हो गया एक, दिस इज द मिनिमम। सो एंड हमारी जो आज की रेगुलेशंस हैं दे आर द सेम एज यूरोप, अच्छा, सेम। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर एट द सेम लेवल। तो ये एक बेस लेवल हम लोगों को सबको समझना चाहिए, कस्टमर्स को और आपके Right. श्रोताओं को, आपको, मेरे को, सब लोगों को ये समझना चाहिए कि एक बेस लेवल है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेम है और सेम लेवल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि जैसे आप जैसे हमने फ्यूल एफिशिएंसी की बात करी है और कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो चेक करता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और तो एक जो ग्लोबल एनकैप जैसी एजेंसीज हैं या यूरो एनकैप एजेंसीज हैं, ये एक इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से ऊपर क्या है, और जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि अच्छा ठीक है टू द कस्टमर कि आपका गाड़ी जो आप खरीद रहे हो वो 2 स्टार है कि 3 स्टार है कि 4 स्टार है कि 5 स्टार है। इसका व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज ग्लोबल एनकैप मीन? ग्लोबल एनकैप मीन्स ग्लोबल दिस इज न्यू New कार car assessment असेसमेंट program. प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आप जब गाड़ी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस टाइम में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आज, तब आप एनकैप एजेंसी के पास जाते हो और बोलते हो कि मैं गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिफोर आई इंट्रोड्यूस प्लीज़ टेस्ट दिस व्हीकल, और ये आप मेरे को बताओ कितनी रेटिंग है। जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ फिर मैं बोलता हूँ कि ये 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, या AOP जो है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, या COP है चाइल्ड ऑक्यूपेंट, इसका ही है। तो जब मैं रिलीज़ करता हूँ गाड़ी, उसके बेसिस पे वो रेटिंग होता है। उस रेटिंग के हिसाब से यूरोप और अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो इंश्योरेंस का जो वो होता है प्रीमियम जो होता है, उसमें डिसाइड होता है कि क्या इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, क्या डिफरेंस होगा। उस तरह से लोग अपने चॉइस के हिसाब से वो ले सकते हैं, 3 स्टार रेटिंग लेंगे, 4 स्टार रेटिंग लेंगे, 5 स्टार लेंगे। इट्स लेफ्ट टू द कस्टमर टू डिसाइड कि मेरे को क्या लेना है, और वो भी ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वेरिएंट लेना है। Correct. वेरिएंट वाइज भी अलग हो सकता है। तो ये एक मैच्योर प्रोसेस है जिसमें हम ऑलरेडी, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है, और वो आज की तारीख में हम इसको इंडिया में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक क्या है, ग्लोबल एनकैप गाड़ियाँ इंडिया से लेके दे यूज्ड टू टेक इट टू यूरोप एंड टेस्ट इट एंड अलॉट द स्टार रेटिंग। एक उनका पहले का वो था, प्रोटोकॉल था। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है उन्होंने 2022 में अभी जो रिलीज़ करा है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है इसका। तो अब जो BNCAP जो है वो भी वही इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ग्लोबल एनकैप। तो अब इंडिया में भी हम ग्लोबल एनकैप की तरह हम स्टार रेटिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी देंगे और हम टेस्ट करेंगे। और मारुति सुजुकी भी वेलकम करता है उसको। मारुति सुजुकी भी जब भी अब नई गाड़ी हमारी लॉन्च होगी, हम भी अपनी गाड़ियाँ देंगे टेस्ट करने के लिए। दे विल वॉट एवर इज द स्टार रेटिंग, वी विल टेल द वर्ल्ड कि भाई ये हमारी स्टार रेटिंग है। ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, इट इज़ नॉट अ एग्जिस्टिंग कार असेसमेंट प्रोग्राम। यू नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि भाई ये डिफरेंट है। कि चैलेंज ये है कि मतलब आप पुरानी गाड़ी टेस्ट करना शुरू कर दोगे न्यू पैटर्न के साथ में, वो मीट नहीं करेगी ना। तो इट्स देयर। और अगर आज की पुरानी 5 साल पुरानी गाड़ी अगर आप बना रहे हो और उसको आप आज भी नई गाड़ी बना रहे हो और बेच रहे हो, दैट इज़ नॉट द न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम पर्पस। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज़ फॉर न्यू कार इंट्रोडक्शंस व्हिच आर हैपनिंग एनी केस। तो ये होगा अभी, और अब से जब ये व्हेनेवर दिस इज लॉन्च्ड, वी ऑलरेडी हैव टोल्ड द गवर्नमेंट कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी गाड़ियाँ देंगे। कितनी गाड़ियाँ भेजी आपने NCAP में? अभी हम भेजेंगे, अभी हमने अच्छा, भेजनी भेजना है, शुरू हमने भेजनी नहीं है, अभी भेजेंगे। अभी तो आया है प्रोटोकॉल, I think, पिछले हफ्ते ही we are आया। talking अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है। पिछले हफ्ते ही आया है। The process of working is same. Government will pick any car from the market. गवर्नमेंट नहीं, आपको देना है। वी विल से कि भाई आप ये गाड़ी हम ऑफर करना चाहते हैं, आप पिक कर लीजिए ये वाला वेरिएंट, और ये आप टेस्ट कर लीजिए। Okay. उसका एक सिस्टम है, फॉर्मेट वगैरह भर के वो सारा डिटेल दे के गाड़ी आपको पेमेंट करनी, सब कुछ। यू पे द टेस्ट एजेंसी एंड टेस्ट एजेंसी विल टेस्ट इट, Okay. एंड देन दे विल। But weren't you comfortable with the Global NCAP? Because they were also a testing agency, and you know some brands have, of course, I mean, used their rating system really well in their favor, I believe. So
No, we had nothing, either way we didn't have any view on that. We just said that whenever we are working on BNCAP, पहले हम BNB SAP पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद में हम BNCAP, हमने हमेशा हमारा स्टैंड यही रहा कि जब BNCAP आएगा हम करेंगे, we will participate in that. तो we are sticking to that. So there's no change in that. How do you see the entry level cars? जब ये सेफ्टी की सारी बातें हो रही हैं कि इतने एयर बैग्स होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स, ऐसा मेरा भी बिलीफ है कि एक टू व्हीलर चलाने वाला बंदा जो एक एंट्री लेवल कार खरीद रहा है जिसका बजट 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए है, तो वो ऑलरेडी अपग्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, कि वो टू व्हीलर से 4 व्हीलर आ रहा है तो ऑलरेडी वो उसके लिए आई थिंक 200% सेफ हो गया मेरे हिसाब से. बट वहाँ पर जब ये नॉर्म्स ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, हाउ डू यू सी दैट? इसका मतलब तो ये कि अगर हम वी फिल देम विद द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, हम उनको बोल रहे हैं कि भाई आप गाड़ी मत खरीदो. देखिए, इसके दो तरीके से लोग देखते हैं जी. एक तो जो आपने पहलू लगा जी. कि मतलब हम इसको अफोर्डेबल करना चाहते हैं, दूसरा पहलू है कि अच्छा एंट्री लेवल वाले को आप सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते हैं, राइट. विच इज़ राइट, आई डोंट नो, बट एंड आई शुड नॉट जज दैट. ये कोई और जज करेगा, विच इज़ कस्टमर, एंड सरकार जज करेगी, उसमें मैं जज नहीं करना चाहता कि क्या सही है इसके अंदर में. बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो हमारा जो हम गाड़ी बनाते हैं, हम एंट्री लेवल में भी हम 6 एयर बैग देंगे, हम 3 पॉइंट सीट बेल्ट देंगे, सब कुछ करेंगे हम. हमें वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी विल मेक इट हैपन. बट हैविंग सेड दैट, उससे कस्टमर को ये लगता है कि वो सेफ़ हो जाएगा और वो किसी भी तरीके से गाड़ी चला सकता है और कुछ भी कर सकता है, वो गलत है. सही बात है. वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम चीज़ है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं. एंड लोगों को स्टार रेटिंग चाहिए, बट वो आर दे कॉन्शियस अबाउट सेफ्टी इज़ माई क्वेश्चन. Do they really want the safety overall? नहीं, सेफ्टी बोलने के लिए और सेफ्टी करने में बहुत फ़र्क है. आज मैं रोज़मर्रा में जिस तरीके से मैं काम करता हूँ या घर में रहता हूँ या घर से मैं ऑफिस आता हूँ या कहीं जाता हूँ, मैं जो भी सोच है मेरी, मैं सेफ तरीके से काम कर रहा हूँ, Is the approach रह रहा right? हूँ कि नहीं, ये अप्रोच है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. राइट. वो एक अहम चीज़ है जो हम 4 पिलर्स ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, वो है एजुकेशन. वो एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है. आप कितने भी एयर बैग लगा लो, 6 के 8 भी कर लो, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ठीक है, आते हैं बार तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आप नहीं बचोगे. राइट. हाँ, तो मतलब जब स्टार मिल गया आपकी गाड़ी को, उसका मतलब नहीं कि आप उसका- सुपर स्टार बन गए हो, 150 पे नहीं चला सकते आप गाड़ी. हाँ, मतलब आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी है. राइट. आप 150 पे नहीं, आप स्पीड लिमिट पे चलाएंगे, आप लेन में चलाएंगे, यू विल फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, यू विल नॉट ओवर स्पीड, यू विल नॉट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड, you will not go over the red light, you will not cross. All those things have to be kept in mind. Right. So मुझे कभी कभी लगता है कि देयर शुड बी NCAP काइंड ऑफ रेटिंग फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल. 5 स्टार रेटेड ड्राइवर है, हमने इसको टेस्ट नहीं, किया. आजकल हमने वो सॉफ्टवेयर में तो देना शुरू कर दिया, देखो आप कितना इकोनॉमिकल चल रहे हो. हाँ, आई थिंक यस, मैन्युफैक्चरर शुड आल्सो डू. टेक्नोलॉजी तो आएगी ना, आप रेट ही कर दो. देखिए, ऐसा है कि हम ना we can only anticipate and educate the customer about the possible abuse they can do and try to engineer to a particular level. Beyond that we can't do. वो we can't do that. तो हम educate कर सकते हैं, हम बता सकते हैं. हम कंटिन्यूसली वी विल इन्फॉर्म एंड वी विल टेल. रोड इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है, एजुकेशन करना ज़रूरी है, एनफोर्समेंट करना ज़रूरी है. ये सब तो दीज आर ऑल जो पहलू हैं ऑफ सेफ्टी, दे ऑल हैव टू बी मेट. अगर ये नहीं मीट करोगे तो एनीवे इसका तो मतलब कोई अंत नहीं है. तो but having said that, I do believe that that two-wheeler transition to a four-wheeler, I think is very, very important. How we can make that happen is always a challenge for Maruti Suzuki, and we always believe in that. Yeah. And right from our management, our very strong view is that should happen, because today आप देखो कि आप ना, ये अगेन टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू एंड. आप उसको रोड सेफ्टी आप बात करते हो, स्टार रेटिंग की बात करते हो, आप एक्सीडेंट की बात नहीं करते, आप फैटेलिटी की बात नहीं करते. और फैटेलिटी क्यों आप बात नहीं करते हो, किस कहाँ पे फैटेलिटी हुआ उसकी भी बात नहीं करते हो. फैटेलिटी कहाँ हो रहा है? 60-70% ऑफ द केसेस वल्नरेबल रोड यूजर जो हैं वो या तो पेडेस्ट्रियन है या वो टू व्हीलर है. राइट.
उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, उसका कैसे आप करोगे? तो दिस इज समथिंग आई थिंक व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड, Right. हाउ वी आर लुकिंग एट सेफ्टी होलिस्टिकली। हर चीज़ को ना एक मापदंड होना चाहिए, एक डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इंजीनियरिंग वाले हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं, बिकॉज वी लुक एट टेक्नोलॉजी इन दैट वे, इसको Right. फ़ायदा क्या होगा और हम कॉस्ट डालेंगे तो क्या होगा। तो बट हैविंग सेड दैट, we are fully committed to the safety quotient as far as whatever is required for doing B and CAP and all the other future regulatory mechanisms are concerned. राइट, आई थिंक आपने इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के साथ साथ जैसे कि होलिस्टिकली हमने बहुत चीज़ों की बात करने की कोशिश की, बट एक पॉडकास्ट में सब कुछ कैद कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम आपके सारे व्यूज़ जान लें। ऑल्दो आई कैन गो ऑन एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट टाइम विल टेक 24 आवर्स। हम सुबह 12 बजे से अगले दिन रात तक बात करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, और उससे पहले हम एक थोड़ा फैक्ट्री विजिट करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग। But yeah, thank you so much for being part of this, and I'm pretty sure कि जितनी जनता देख रही है उनको भी थोड़ी बहुत वो अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए या मार्केटिंग पर्पज से यूज़ होती हैं, कुछ जेन्युइन होती हैं, कुछ जेन्युइन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होते हैं जिनके बारे में हमने बात की। सो थैंक यू सर, Thank you very much. हम वापस मिलते रहेंगे। रमन सान बोलना ज़रूरी था, मैंने सर बोल दिया उसके लिए माफ़ी। Thank you, It sir. was a Thank you. pleasure talking to और you. अगर कोई और टॉपिक स्पेसिफिक अगर आपके पास में होगी, भैया इस पे बात नहीं की है हमने, यू जस्ट टेल अस, हम इनसे पूछ के फिर उस पर वीडियो बनाते हैं। हाँ, हम इनको वीडियो पे बार बार नहीं ला सकते, बट हम इनसे मिलते बार बार हैं। जब भी मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी आ रही है मिल लेते हैं हम। जरूर, it's a pleasure, absolute pleasure to be here. Thank you so much. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी सर।